So this is our first class on JV's mentorship. This is an ice-breaking session in which I would be dealing with the contours, with the features of this course, in which I'll be taking you through as to what all is going to be there in this course, guys. We'll be keeping, as I said, we will be keeping the class size to maximum 10 only, and this size would be such that people who are at same wavelength, the students who are at same wavelength of preparation, insofar as their optional is concerned, insofar as their level of preparation is concerned, insofar as their academic background is concerned, they will be kept in the same group. It will be up to the students if they want to interact or not. From our side, the back-end support will be there in the form of, let me just tell you, let me just share my screen also. In the form of the material, some of the stuff we would be providing you. इस कोर्स के ये contours में आता है कि सिर्फ mentorship ही नहीं बल्कि कुछ मटेरियल, जैसे कि GS मेंस पेपर 3 का ये टॉपिक है. GS मेंस पेपर 1 का टॉपिक ले लेते हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. If you are not performing well, or if you are lacking in this topic, why sugarcane industry is located in South India, right? Location of industries in India and in the world. Why Silicon Valley is in Silicon Valley? क्यों है ऐसा, right? Why iron and steel industry is not able to pick up in India? Why a particular industry is located in a particular area? Geographical factors हैं और कुछ और फैक्टर्स हैं उसके पीछे. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पीछे प्रोक्योरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं. एक तो रॉ मटेरियल वहीं पे है, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि रॉ मटेरियल सप्लाई इज नियर टू दैट एरिया, राइट? जस्ट 1 मिनट. तो सप्लाई जो है उस पर्टिकुलर एरिया में है. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू. Now, are you able to see things on your screen, guys? I have unmuted all of you so that you can also interact, so that you can also say whatever you wish to say. Is the screen visible to all of you? Okay, Girendra and Kanchan, you can also speak if you want to. So, जैसे कोई लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का टॉपिक है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का अगर टॉपिक है तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक है आप उसको कहां से पढ़ोगे, कहां से नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड रहेंगी, राइट? ये हम जो है आपको बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ओनली फॉर द एरियाज दैट यू आर लैकिंग इन. यू वुड बी टोल्ड द पेज नंबर्स ऑफ द बुक्स कि कौन सी चीज किस बुक से पढ़नी है, कौन सी चीज कौन सा स्टफ कहां से आपको सही फॉर्म में मिल जाएगा. इतना सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा. एंड फोर्टनाइटली, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग, सो आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन दिस प्रोसेस. Shubham, are you able to hear me now? Are you able to watch the class, Shubham? Are you able to join in the meeting? He is admitted now. So coming back to the screen share, as I was telling you, can you see my screen now? All right. So here we go.
नाउ कैन यू सी द पावर पॉइंट स्लाइड? तो अगर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई टॉपिक है, व्हाई अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, आई विल बी टेलिंग यू कि ये चीज यहां से पढ़नी है. एवरी फोर्टनाइट, एवरी 14 days देयर विल बी अ जूम मीटिंग with either me or with somebody from the team, right? And that person would be handling the queries throughout the year, throughout the 7 months period that you are associated for. तो इस कोर्स के टाइम पे आपको जीएस मेंस पेपर 1 में, जीएस मेंस पेपर 2 में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वी विल बी देयर टू पुश यू, टू प्रॉड यू, टू परसुएड यू टू स्टडी, राइट? इसमें ये नहीं रहेगा कि हाँ हमने ये बता दिया, ये यहां से पढ़ लो. वी विल बी डूइंग द परफॉर्मेंस assessment also ki there is a test of 10 questions, 20 questions from this area. If you would say that you have covered that particular topic as suggested by the mentor told you to read these things from this particular area, आपने बोला कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद आपका prelims oriented एक टेस्ट रहेगा. उस prelims oriented टेस्ट में 10 questions, let's say every 10 days, once in 10 days 10 to 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहेगा. ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जो चीजें आप पढ़ रहे हो कस्टमाइज्ड वे में, पर्सनलाइज्ड वे में, जो टॉपिक आपको दिया गया उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, देन रेफरेंस बेस्ड. अब अगर आपकी परफॉर्मेंस इसमें पुअर आ रही है, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, देन यू वुड बी टोल्ड थ्रू द टेलीफोनिक डिस्कशन कि आपको इस एरिया पे काम करने की जरूरत है. देन यू वुड बी आस्किंग कि क्या पढ़ा जाए, मैंने ये पढ़ तो लिया है, मेरे को याद नहीं हो रहा, इसके अलावा और क्या पढ़ूं, ये पढ़ने के बाद भी मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, देन व्हाट शुड आई डू? इन दैट केस what is expected of you is you would be told कि आपको सविंदर सिंह का या फिजिकल ज्योग्राफी का या फिर लोकेशनल ज्योग्राफी का इस बुक का पेज नंबर 67 से 78 आपको रीड करना है. दैट्स इट. ठीक है, यू हैव टू रीड दिस एंड देन यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन और 2 कि आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप इसको पढ़ो, अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, दैट वुड बी इनफ, राइट? और वीकली टारगेट्स इसमें आपको दिए जाएंगे कि इस वीक में आपको इतना पढ़ना है, इस मंथ में आपको इतना पढ़ना है, और मंथ के बाद आपकी एक रिपोर्ट कार्ड रेडी होगी जिसे हम कह रहे हैं जेवीज रिपोर्ट कार्ड. जेवीज रिपोर्ट कार्ड, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जो टारगेट्स दिए गए थे क्या आप उसको कवर कर पा रहे हो या नहीं. टेलीग्राम पे ग्रुप्स रहेंगे, पीयर रिव्यू, सो दैट आपका मोटिवेशन, मोरल अप रहे, बना रहे, कि ये नहीं हो कि आप बीच में लैगर्ड फील कर रहे हो या आपको ये लग रहा है कि मेरी तैयारी औरों से अच्छी नहीं चल रही, लाइक दैट, ये सारी चीजें ना हो, राइट? सो दिस वुड बी दी broadly this is going to be the way in which we are going to proceed along in this course. Periodic classes रहेंगी, इसमें क्लासेस ज्यादा नहीं रहेंगी because this is a mentorship course. Fortnightly या फिर 21 days में, once in 21 days there will be a class of 10, maximum 10 students, so that when you ask your queries, it should not be the case that there are 50 people and you are not able to ask. Personalized response is going to be an interesting feature, is going to be the unique feature of this course. Periodic reports, आपको पढ़ना तो खुद को है, you are already a college graduate, कुछ ना कुछ डिग्री आपकी हो चुकी है, किसी का 1 या 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, या किसी ने पहला अटेम्प्ट कैजुअली दिया था, तो you know things, right? This course is just to help you sail smoothly through your self study. Clear? तो ये कोर्स आपकी बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए. अब वन बाय वन आई विल टेक योर क्वेश्चंस कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ the location where you are located, if it is congenial enough for you to turn on your camera or audio visuals, you can do that, right? तो you can very well do that. जिसका कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो उसमें. Alright, so this is there. Now you can ask your questions, guys. Hello everybody. Hello Kanchan. Hello Naren. Hello Girendra and Shubham. Payal. So I have unmuted everyone from my side. पढ़ना इस कोर्स में आपका काम रहेगा, पढ़ाना और पुश करना हमारा काम रहेगा, राइट? जो भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो इसमें विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन. Naren, you are not audible from my side. You are just 1 minute.
Is it from my side or just give me 1 minute, guys. Can you please say something? Hello. Yes, yes. Now everybody, now all of you are audible. So the speaker, I had to change the speaker in order for me to hear you. Yes, one by one, please. There are just 5 students. Yes, Naren. Yes, sir. Like I was asking that will we be provided with like some sample questions for every topic for mains practice, like answer? No, not for every topic, but for some of the topics which are quite prominent in the news, like that. Only for current affairs, you can expect that. Okay. So like interrelated topics for like polity as overall, not just in one dimension, but overall connectivity through current affairs. So Current affairs, yes, you can expect that. Some of the questions will be there definitely to expose you to what type of questions are they going to ask in this exam, right? So prelims के questions रहेंगे, mains के question के लिए because there are around 50 students in this, so it will be to एक wavelength पे same wavelength पे लेके आना, वो एक problem है इसमें. We'll try our level best कि जहां तक हो पाए we will definitely incorporate that part, right? Any which ways you have already joined the mains guidance program, Naren. Okay? yes, sir. तो वो तो उसमें है ही, तो वो एस्पेक्ट वहां पे कवर हो जाता है. यहाँ पे क्या है ना कि जिन स्टूडेंट्स का जैसे सिलेबस कवर्ड नहीं है, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन इश्यूज है या एनी सॉर्ट ऑफ सच प्रॉब्लम, या फिर ये नहीं पता कि पढ़ना तो है, दे आर स्पेंडिंग 10 hours 8 hours a day, they are sincere, but then somewhere they do not know कि कहां से पढ़ना है. We will be precisely guiding you कि गोशिंग लियांग जो बुक है, NCERT सारी नहीं पढ़नी, MPS इग्नू के जो नोट्स हैं, MPS 003 जो बुकलेट है पॉलिटिकल साइंस की, उसका कौन सा चैप्टर पढ़ना है फेडरलिज्म के लिए, उसका सेकेंड ARC का कौन सा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द करंट अफेयर्स इन माइंड, ये चीजें रहेंगी इसमें, राइट? क्लियर? एंड सर दिस वन मोर थिंग कि अगर जैसे कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर हमने मेंटोर से बात की कि ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो उसके PYQ सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं एनालिसिस के लिए. PYQ मेंस के लिए बोल रहे हो ना आप? मेंस वाला इसमें वही क्वेश्चन को आप दोबारा से पैक करके पूछ रहे हो किसी और फॉर्म में. तो पॉइंट ये है कि मेंस वाला जो इसमें पार्ट है, मेंस वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा. आप सारी चीजें समझो कि एक मेंटर के पास में, राइट? वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. कभी ऐसा होता है कि जैसे वी वांट टू मेक दिस कोर्स एज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल फॉर मेंटरशिप. टाइम रहेगा तो डेफिनेटली वी विल डू दैट, बट ऑफिशियली स्पीकिंग नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. नाउ आई थिंक, आई होप यू विल नॉट रीपैकेज इट इन अनदर फॉर्म. यस, ओके. सो ओवर टू यू, कंचन. Sir, the problem with me is like I'm not able to like keep a balance between pre and mains. Initially I was focused on prelims, then I went back to mains, and then just prelims came up, and then today we have to start with mains again. So how we should keep a balance between pre and mains? When you say that you are not able to maintain the balance between pre and mains, if I were to ask you what topics, when you prepare for prelims, what exactly do you prepare? आप प्रीलिम्स और मेंस को कैसे सेग्रीगेट करते हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूं. मतलब ये ठीक है कि हो सकता है कि कुछ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन डिफरेंट है, कुछ मेंस की डिफरेंट है, बट आपकी व्हाट इज योर टेक इन दैट मैटर? So I basically go through the topics and few previous year's question, and the best I can get from the market, the questions from the market regarding prelims. नहीं, प्रिपेयर जब टेक्स्ट प्रिपेयर करते हो, ये तो हो गया टेस्टिंग योरसेल्फ एज टू हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स.
I am asking, when you are actually preparing for it, what kind of a, am I audible? Yeah, sir. Yeah, what kind of material do you actually read for prelims? When you say that you are preparing for prelims, तो वो मटेरियल मेंस के मटेरियल से कैसे अलग होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर वो तो बेसिकली सर एनसीईआरटीज और जो कॉमन बुक्स होती है जो इंस्टीट्यूशन से हमें प्रोवाइडेड है। इसका ना कोई प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं है, आप मेरी बात को समझना। Today I was taking up this topic in the social issues. Just I'll share the screen with you. Just give me 1 minute, हाँ। जैसे हेल्थ इश्यूज में आज मैं सब्सटेंस अब्यूज आई वाज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज। आई गेस द स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू नाउ, जस्ट 1 मिनट। सी, अब मैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज पढ़ा रहा हूं, अब आप ये कहोगे कि सर ये सब्सटेंस अब्यूज जो है मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही हूं, राइट? बट प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आप पढ़ रहे हो जो प्रीलिम्स के लिए, आपको हमारा काम इस मेंटरशिप कोर्स में ये होगा कि ये चीजें प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है या नहीं। फिर ये चीज जो है आगे अगर हम चलेंगे, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, दिस इज मेंस ओरिएंटेड। जो आप मटेरियल पढ़ते हो, टोटल नंबर ऑफ people who were victims of drug overdose, who succumbed to drug overdose, जिनकी drug overdose की वजह से मौत हो गई, प्रीलिम्स में ये कोई नहीं पूछेगा। ये आपका डेटा साइटेशन के लिए है। साइटेशन का मतलब कि आप उसको साइट करोगे अपने आंसर में, राइट? लाइकवाइज नेशनल सर्वे ने क्या कहा, की फाइंडिंग्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस इन मेंस एग्जामिनेशन। तो ये तो जो डेटा है आपको मेंस के लिए रटना होता है, ठीक है? अब आप ये कहो कि ये डेटा मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी, नहीं, दोनों की प्रिपरेशन इंटरलिंक्ड है, आपको ये समझना होगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप इसी डिलेमा में रहोगे कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी, लेकिन मैं मेंस की प्रिपरेशन स्किप हो जाती है। जो आप पढ़ रहे हो अभी के लिए आप मेंस के लिए पढ़ो। जनवरी में, फरवरी 15 से हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारा जो टाइम अपॉर्शनमेंट है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम चेंज कर देंगे। अभी के लिए 70 to 80% ऑफ टाइम ऑफ योर्स शुड गो टू मेंस। व्हेन आई से मेंस, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेंस के लिए प्रिपेयर करते टाइम वो ये करते हैं कि मैं अभी जीएस मेंस पेपर 1 को प्रिपेयर कर रहा हूं। उस जीएस मेंस पेपर 1 में जाएं तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या पढ़ रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। जब आपने ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हो तो वो मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, वो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हो। 2014 में अभी जैसे तमिलनाडु में जो ये साइक्लोन आ रहा है, 2013-14 के मेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा साइक्लोन्स को कैसे नेम किया जाता है, हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। दैट वाज अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन। Then I'll tell you, one of my friends was asked the question in the interview कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी से एलईडी कैसे डिफरेंट है। Next time in the prelims, this question was asked in the prelims examination the very next year, right? फिर आप पीछे के क्वेश्चंस और उठा के देखोगे, वही सेम क्वेश्चन मेंस में पूछ रखा है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये कोई जो आर्टिफिशियल डाइकोटमी है, ये डाइकोटमी नहीं है। ऐसी मिथिक जो क्रिएट किया गया है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ये सेग्रीगेशन कर दिया कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग है, मेंस की अलग है, जबकि ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक आया है, ठीक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। मेंस में ये पूछा जाएगा कि ये रैंक जो है वो लो क्यों है, why the rank is low, this much is required, only this much of a segregation is required कि डिफरेंस जो है। अब आप इसी पीपीटी में आगे चलोगे सोशल इश्यूज की, तो आप ये देखोगे कि और भी काफी चीजें इन्होंने इसमें डील करी हैं। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस। तो सी दिस, मद्रास हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है। मद्रास हाईकोर्ट ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो कार्टेल है, नॉर्थ इंडिया से ड्रग्स आती हैं, मीथाम्फेटामाइन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेम ऑफ द ड्रग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट किसे कहा जाता है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, जहां पे ड्रग्स सप्लाई होती हैं।
ईरान, पाकिस्तान, इंडिया से, ये हमने सबने पढ़ रखा है, या नहीं पढ़ रखा तो वी विल बी हेल्पिंग यू कि ये मटेरियल कहां से पढ़ना है। आपको ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मेंटरशिप कोर्स बनाया गया है कि जब हम ये मटेरियल पढ़ रहे हैं तो क्या हम ये कहें कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं, हम प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। शर्त सिर्फ ये है, कंडीशन सिर्फ ये है दैट यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द नेम्स ऑफ द ड्रग्स। ट्रामेडोल, मीथेम्फेटामाइन, गोल्डन ट्रायंगल किन 3 कंट्रीज को कहा जाता है, 4 कंट्रीज को कहा जाता है, गोल्डन क्रेसेंट क्या है, इंडिया एक ट्रांजिट रूट है, ये हमें पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी पता होना चाहिए, राइट। मेंस में हमें खुद से ये लिखना है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द टर्म गोल्डन ट्रायंगल रिमेन्स इन न्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन ट्रायंगल? It is a group of countries producing opium. It is a group of countries which are members of SCO, Shanghai Cooperation Organization. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अराउंड बन जाएगा। आई होप आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू कि क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों से इसमें। तो ये कोई डायकोटमी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में द अदर डे आई वाज डीलिंग इन द सोशल इश्यूज कोर्स ऑफ माइंड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक अगर लो है तो वो रैंक लो क्यों है? इंडिया का रैंक अगर हाई है, किसी चीज में इंडिया ने इंप्रूव किया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, तो क्यों किया है? ये क्वेश्चंस यूपीएससी 3 और 4 पॉइंट्स आपसे मांगेगी। तो यानी कि जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट होते हुए सिर्फ ये पूछना है, एक्स्ट्रा विजिलेंट होते हुए आपको सिर्फ ये पूछना है अपने आप से कि क्या मैं इसे प्रीलिम्स में याद रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, क्या मैं इसे प्रीलिम्स में विल आई बी एबल टू रिकलेक्ट दिस और नॉट। मेंस के लिए वो 4 क्वेश्चंस आपके एवरनोट की भी मैं क्लास लूंगा, हाउ टू मेक नोट्स ऑन एवरनोट टॉपिक ओरिएंटेड मैनर में, ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। आने वाले दिनों में हम ये सारे नोट्स भी देखेंगे, राइट। So ये question, I hope the answer to this question, the way I have answered it, will be helpful to others also. To the next student, anybody else? पायल, आप प्लीज बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस थोड़ा कम करो, फोन को बार बार नहीं हिलाओ, यहाँ पे ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, दैट इज व्हाई आई हैड टू म्यूट यू। शुभम, एनी क्वेश्चन? गुड इवनिंग, यस यस यस। Manage the daily current affairs with the current affair course 65 because I'm not able to get the enough time to prepare on the daily basis the current affairs. Are you working? I'm able to manage that thing, so. Are you working, Shubham? Okay, so basically 2x या 1.5x स्पीड पे आप अगर इसको देखते हो, एक तो सिंपल सा आंसर ये है, इफ यू स्टार्ट वाचिंग दिस एट अ स्पीड ऑफ 2.5x टू 1.2x जो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पीड रहती है विमियो की, उससे कवर करके आप देख सकते हो, या तो एटलीस्ट ट्राई स्पेयरिंग सम टाइम आउट by watching it, by at least reading the PPTs, right? I have started making my PPTs more comprehensive, more information laden, so that people who are not able to watch the videos again and again or even once due to their office requirements, they should be able to benefit from it, right? PPTs at least पढ़ो आप, वर्ड डॉक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स राउंडअप 365 में, उस वर्ड डॉक को एटलीस्ट अगर आप पढ़ लेते हो फटाफट से रीडिंग स्पीड को बढ़ा के थोड़ा, तो देन यू वुड गेन द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने एक्चुअली ये कोर्स वीडियोस नहीं देखे लेकिन मैंने उसका मटेरियल तो पढ़ा है। और सैटरडे संडे को एटलीस्ट 5 क्लासेस होती हैं वीक में, मंडे टू फ्राइडे, तो आप सैटरडे संडे को कोशिश करो कि एक सिटिंग में एक क्लास निपटाते हुए 5 to 7 आवर्स अगर आप पढ़ लेते हो तो वो भी इनफ रहेगा। मतलब मैं अभी क्लासेस तो मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूं, राइट, निकलते जा रहे हैं, पेपर रीडिंग हो गया या दूसरी पीआईए टाइप हो गया, तो वो सब देख पाता हूं, वो कंपलसरी है नहीं, वो इश्यू नहीं है। देखो जो चीजें मैं करंट अफेयर्स में पहले मैं कुछ अलग वे में डील कर रहा था, अब आई एम डीलिंग विद थिंग्स इन माय ओन वे, तो इसमें व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो आपका टॉपिक है, जैसे जुडिशरी का एक टॉपिक है हमारा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ एवरीवन? तो जुडिशरी का टॉपिक है, जुडिशरी में 10 प्रॉब्लम्स हैं, 11 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 अभी जो रिसेंटली न्यूज में चल रही थी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, NJAC एक्ट,
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट का इशू है, वैकेंसीज हैं, जुडिशियल बैकलॉग है, तो ये सारी चीजों को मैं टॉपिक बेस्ड मैनर में कवर कर रहा हूं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी हो, विच विल बी गुड फॉर यू टू गेन कॉन्फिडेंस, बट जुडिशियल बैकलॉग ऑफ केसेस या एनजेएसी आप वहां तक नहीं जा पाओगे जहां तक एक टॉपिक बेस्ड क्लास में 3 क्लासेस में मैं ये जुडिशरी का पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इसी वे में कवर किया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रीसेंट जो कंट्रोवर्सीज हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो क्या है, टीएन सेशन के टाइम पे क्या हुआ था, ये सब हमने कवर किया है, राइट। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक दिन आप एक डायमेंशन देखोगे, शायद उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आपके 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे। वो 2 पॉइंट्स हम पहले से इस अप्रोच में कवर कर रहे हैं। अब इसके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके अंदर मुलगांवकर प्रिंसिपल्स हैं, आपने पढ़ा होगा, 10 दिन के बाद ये न्यूज में आया था मुलगांवकर प्रिंसिपल्स। अब मुलगांवकर प्रिंसिपल्स भी हम इसमें कवर करेंगे, प्रशांत भूषण केस भी कवर करेंगे, लास्ट 3 इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं कोर्ट की वो भी हम कवर करेंगे। तो बचा क्या, कुछ नहीं। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ गुड थिंग प्रोवाइडेड यू गॉट फ्री टाइम एंड एवरीथिंग। आपकी ओपिनियन जरूर डेवलप होगी, बट पॉइंट इज अल्टीमेटली एवरी ओपिनियन हैज टू बी रिड्यूस्ड इनटू अ पॉइंट। आर यू एबल टू डू दैट व्हेन यू डू दिस ऑन योर ओन? इफ द आंसर ऑफ योर्स इज नो, देन करंट अफेयर्स राउंड अप इज द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो आप पहले से उस कोर्स में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही आगे कोई प्रॉब्लम आएगी। एम आई क्लियर? या तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ये yes in this course mentorship you will be given a performance tracker, personalized guidance also, कि अगर आप अभी ज्योग्राफी कवर कर रहे हो तो मेंटर विल आस्क यू कि ज्योग्राफी के साथ आपका पॉलिटी का लेवल क्या है, इकोनॉमी का लेवल क्या है, फिर आपके पास पढ़ने के आवर्स कितने बचते हैं, राइट। ऑप्शनल के सिचुएशन में, ऑप्शनल आप कहां किस सिचुएशन में है, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शनल बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ करंट अफेयर्स और जीएस पे फोकस्ड हो। तो ही और शी द मेंटर विल हेल्प यू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 and optional subject. Then once you clear prelims, then this will be about essay also and ethics paper also. Because time is less, अभी 6 महीने हैं, तो हमें judiciously अपना ये टाइम कुछ इस वे से allocate करना है कि हम तीनों चारों चीजों में एक बैलेंस बैठा सकें। That is what a mentor is going to help you in. Okay. So anybody else? पायल, कोई क्वेश्चन है आपका? Yes sir. हाँ जी। सर मैं एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ना, पॉलिटी की, हिस्ट्री की? ये चीजें जो आपके साथ पर्सनलाइज्ड जो आपका ये रहेगा ना, ये सेशन रहेगा मेरे साथ में या किसी मेंटर के साथ में, प्रेफरेबली फर्स्ट सेशन विल बी विद मी ओनली, हाफ एन आवर सेशन रहेगा, तो ये क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। इन अ डे और 2 दिस सेशन विल बी देयर विद एवरीवन, ओके। सो जो आपकी पर्सनल क्वेरीज हैं, जो कि जिसका एक डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है, तो ये अभी क्या है, ये एक जनरल डिस्कशन है, राइट। लोकसभा की डिस्कशन जैसे जनरल होती है ना, स्टार्ट क्वेश्चंस और अनस्टार्ट क्वेश्चंस बाद में इसमें आएंगे। क्लियर? आधों को जॉक ही नहीं समझ आया, तुम लोग गंभीर यूपीएससी वाले हो गए हो, बहुत सही है, गंभीरता से तैयारी कर रहे हो, हाँ सही है। सो वाज दैट ऑल? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तैयारी है, कुछ जंग पे नहीं भेजा जा रहा तुम लोगों। नरेंद्र, गिरेंद्र, ऐसे लग रहा है अभी दोनों के हाथ में वो AK-47 पकड़ा दो और जा रहे हो बॉर्डर पे। थोड़ा शांति से तैयारी करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो ये नहीं है कि बर्डन लेके तैयारी करना है, राइट। बर्डन मत लो, ऐसे लग रहा है कि कल ही एग्जाम है, ऐसा मत करो। ट्राई डूइंग जस्टिस टू एवरीथिंग दैट यू रीड एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय रीडिंग एंड यू विल एंजॉय एसिमिलेटिंग थिंग्स। फिर रिटेंशन पावर भी बढ़ जाएगी और फिर मजा भी आएगा चीजों को पढ़ने में, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ आइस ब्रेकिंग सेशन विद यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस एज अ टीम लीडर हेयर। मेरे को यहाँ पे भी ध्यान देना होता है कि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, एंड एज अ मेंटर ऑल्सो आई विल कीप ऑन कनेक्टिंग विद यू गाइज इन अ बैच ऑफ 10 ईच, राइट। इंडिविजुअल सेशंस भी रहेंगे मेरे साथ में इन द डेज टू कम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज, थैंक यू।